Remember, we discussed the algorithm binary search. So the idea was that if I have a sorted data set, so in binary search, what I do is I find the median value, the central value, and when I find the central value, I know that the smaller values are on the left of this index and the larger values are on the right side of that index. ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यूज और राइट साइड पे बिगर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, आई वुड यूज दैट इन अ बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, इट्स अ सर्च ट्री बिकॉज जब मैं डाटा को इस तरीके से पार्टीशन करता हूँ तो इट हेल्प्स मी इन सर्चिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू. Now I know if I want to find a value that is smaller than the root node, it would be in the left subtree. And if I want to find a value that is bigger than the root node, then I would find it in the right subtree. So if the value is not on the root, then I would compare that value with the root. Smaller values would be in the left subtree and the bigger values would be in the right subtree. And this is a recursive definition. This left subtree is again a binary search tree. It means that what I have on the root of this subtree is bigger than the values on the left of that root, and it's smaller than the values on the right of that root node. See, so this is a recursive definition. So um, एक चीज और जो डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, इज दैट कि इफ यू सी कि दिस 42 is on the root, but on the left side it has six values, and on the right side it has 8 values. So this is not exactly the median value. In the binary search algorithm, we had the median value. We find exactly the middle of the data set, and then we make two partitions that are equal in size. But in the binary search tree, the equality or the equal size of two children is not guaranteed. We could have k left side pe we don't have any value. All the values are in the right subtree of the root node if the root node is the smallest value. ठीक है जी, तो let's explore it a little further कि these are three different binary search trees, but this first one is an integer binary tree. The second one is this alphabetical, or the values are character values, and this third one is binary values. ठीक है, तो let's discuss this integer values tree. I have 29 on the root and all the smaller values in the left subtree, 3, 15, 23, 22, all the values are smaller than 29, and I have all the bigger values in the right subtree. These all these values are bigger than 29. Then in the left subtree, I have 15 on the root, and the smaller value 3 is in the left subtree, and bigger values are in the right subtree. Now moving to the 23 node, I have a smaller value 22, which is bigger than 15. Okay, it's in the right subtree of 15. So this 22 is bigger than 15 but smaller than 23. So it's in the left subtree of 22. ठीक है जी. Okay. The question is what if the values are equal? Remember, this tree contains a data set. ठीक है, a real data set. तो जैसा कि in your third assignment, what we have is a data set of students. Remember, so all the students are uniquely identified by their roll numbers. Remember. So whenever we say that we are comparing something in our data structure, we always compare the identity of that data value. So these values that I'm showing here, these can be the roll numbers of the students, so I cannot have a duplicate value here. So the overall understanding is that for every data set, I have a unique key for a data value. So all the keys are unique, and there is no duplication in the keys. ठीक है, तो duplicates are not allowed. You can allow them if you want, like in the classical definition of a binary search tree, or the standard definition is that there are no duplicates in a binary search tree. ठीक है जी. Okay, so then moving to the right side of this 29, I have 73 on the root. All the smaller values are in the left subtree, all the bigger values are in the right subtree. In the right subtree, I have 88
as a child of 73, and 91, which is bigger than 88, is in the right, further right of this tree, of this branch. Then in the left subtree of 73, I have 59 on the root, and then I have a bigger value on the right side. For the left subtree, I have these nodes that are smaller than 15. All the values are smaller than 59. Okay, the biggest value is 57 here. Then 46 is on the root, and there are two smaller values that are in the sequence in the left to left. And then in the right subtree, I have 57, 50, and then a bigger value 57 on for the right of this node. So all the nodes follow the property of the BST. So this entire tree is a binary search tree. Similarly, in this character tree, the character value tree, I have the same relationship here for all the nodes. And now this binary tree is a little interesting here. In fact, what I discussed in a previous lecture is that we can have a tree of Huffman coding. Remember, मैंने कुछ encryption की बात की थी. So in that tree I have these binary values in the tree. ठीक है जी. तो क्योंकि वहां पे encryption हो रही होती है, तो we go to the ASCII values of node of a particular value, और उस ASCII को हम फिर ट्री के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं. ठीक है जी. तो दिस ट्री, इसकी एग्जांपल यहाँ पे होना, दिस इज मे बी फॉर द रेफरेंस कि हमारे पास किसी भी टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो बाइनरी में अगर देखें तो दिस इज अ 5-bit नंबर, तो दिस इज अ 14, दिस इज 16. तो सारी स्मॉलर वैल्यूज देन 16 आर इन द लेफ्ट सब ट्री, एंड द बिगर वैल्यूज देन 16 आर इन द राइट सब ट्री. ठीक है जी. तो moving ahead, I have some more example. Let's check them ki which one of these is a binary tree and which are not the binary trees. So for this tree, I have 10 on the root, 5 in the left, and 2 in the further left, smaller than 5. So this branch is following the property of BST. Now moving to the right, I have a bigger value than 10 in the root, so it's correct. Then I have a smaller value than 30, but a bigger than 10 value in the left child and bigger than 30 value in the right child. So this is a binary search tree. Remember, I have to see these values, that whether these values are bigger than 10 or not. ठीक है. तो ये हमने चेक किया. For the second tree, I have a smaller value in the left subtree, which is fine. In the right subtree, I have a bigger value than 5. ठीक है, as a root. This is 45 is fine here. Then on the left of 45, I have 30, which is fine. On the left of 30, I have 10, which is fine. This 10 is still bigger than 5. Then on the right of 10 is 25. So 25 is less than 30. It's in the left subtree of 30. Okay, but this 25 is bigger than 10 and 5. So it's in the right subtree of 5 and in the right subtree of 10. Excuse me, sir. जी कोसेन. So ये 5 and so ये जो फर्स्ट वाला ट्री है, so ये अब इसमें हम नीचे हमने 2 लेके आए हैं, तो सर हमने रूट से ही कंपेयर करके लेके आना ना. जी जी. तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट एंड मूव ऑन द ब्रांच. ठीक है. अभी जब आप इंसर्ट का मेथड देखेंगे तो यू विल सी कि ये इंसर्ट जो है ये इसका सिस्टमेटिकली हो रहा होता है, और वैल्यूज हमें उस स्पेसिफिक लीफ पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती है. थैंक यू सर. अच्छा जी. तो अच्छा, लेट्स कम टू द थर्ड ट्री. इसमें अगर देखें तो वी हैव दीज वैल्यूज ऑन द लेफ्ट ऑफ 10. अगर आप देखिए तो इनमें से एक 25 वैल्यू, दिस इज बिगर देन 10. इट कैन नॉट बी इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 10. ठीक है जी. तो दिस 25 इज वायोलेटिंग द बीएसटी प्रॉपर्टी फॉर दिस 10. सही है. इसके लेफ्ट सब ट्री में जो वैल्यू है, एक वैल्यू इस 10 से बड़ी भी है, तो इट्स नॉट बीएसटी. For the right subtree, I have this 30 on the right of 45, which is incorrect. This 30 should be on the right of 10, but it should not be on the right of 45. So this 30 is also violating the property of a BST. ठीक है जी. तो this tree is not a BST. 30 सही पोजीशन पे भी होता तब भी 25 violate करता. तो even if I have a single node that is not following the BST property, then the entire tree is not considered as a binary search tree. ठीक है जी.
तो सबको बाइनरी सर्च ट्री समझ आ गया है? कोई कंफ्यूजन बाइनरी सर्च ट्री में हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जो डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में वी आर ग्रोइंग ओवर नॉलेज, और अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हमारे पास वी हैव अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। आई हैव an option कि I can actually make the hierarchies m way instead of binary। ठीक है, तो जब मैं m branches बनाऊंगा तो I am dividing the data into m different partitions। Adding on this binary search condition, now I actually know कि if I want to find something तो मुझे exactly किस branch पे जाना है। अगर इन दो इसको just consider it as a binary tree, तो if I find a value in the first tree कि मुझे फॉर एग्जांपल 20 फाइंड करना है, तो क्या आप 10 पे बैठ के बता सकते हैं किस साइड पे होना चाहिए, इसकी किस ब्रांच पे होना चाहिए? सर जरा क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इस ये जो पहला वाला ट्री है इसमें 20 फाइंड करना हो और आपने स्टार्ट किया रूट से सर्च करना, तो क्या आप बता सकते हैं कि रूट पे तो वैल्यू नहीं है तो इसकी कौन सी ब्रांच पे जाऊं? सर वो हम लेफ्ट पे जाऊं या कंपेयर राइट पे जाऊं? सर हाँ, 10 20 इससे बड़ा है तो राइट साइड पे होगा। ठीक है, तो आई एग्जैक्टली नो कि किस ब्रांच पे मुझे ये वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दानियाल ने एग्जैक्टली, हनान, शेजिल, आप लोगों ने ठीक आंसर किए हैं। ठीक है कि जब बड़ी वैल्यू ढूंढो तो एग्जैक्टली नो कि राइट ब्रांच पे मिलेगी, तो लेफ्ट वाला पूरा सब ट्री मैं चेक भी नहीं करूंगा। तो दैट्स द एफिशिएंसी जो ऐड हो जाएगी कि अगर मैं डाटा को एम वे पार्टीशन कर दूं एंड आई एग्जैक्टली पिन पॉइंट द ब्रांच की जो मुझे सर्च करनी है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, देन आई हैव एक्चुअली divided my problems into a smaller subset। एक्चुअली डिवाइड कर लिया था मैंने उसको फॉर एम डिफरेंट पार्टीशंस में, एंड आई नीड टू सर्च ओनली इन वन ऑफ दोज पार्टीशंस। जो याद है, वी डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर और मे बी द सेकेंड लेक्चर कि आई कुड हैव मल्टीपल पार्टीशंस ऑफ द डाटा सेट जस्ट टू मेक श्योर दैट द सर्चिंग और इंसर्शन इज वेरी एफिशिएंट और डिलीशन इज एफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम इस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि वी हैव कम टू द पॉइंट कि वी कैन पार्टीशन द डाटा एंड वी कैन पिन पॉइंट द पार्टीशन के किस पार्टीशन में डाटा मिलेगा। तो वी आर क्लोजर टू द गोल कि हम बिल्कुल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज जितना कर सकते हैं उतना कर लें। ठीक है जी, जो द ओनली प्रॉब्लम दैट वी स्टिल हैव इज कि in this example the middle tree here is that कि still this branch is way lengthier than the other branches। रिमेंबर, ये टू वाली ब्रांच बहुत छोटी है एज कंपेयर टू दी राइट ब्रांच। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम कि हाउ कैन वी मेक श्योर दैट ऑल दी पार्टीशंस आर ऑफ इक्वल साइज और रफली इक्वल साइज। किसी को ट्रीज की कोई डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वो यहाँ पे रिलेटेड नजर आती है कि वी आर ट्राइंग with that definition we try to make the branches of equal size। Exactly, so we would actually add the balancing property here, or if I add that balancing in the BST, then we have the most efficient algorithm that I could have। ठीक है जी। सो ये एक आखिरी प्रॉब्लम रह गया, अदरवाइज हम डाटा स्ट्रक्चर्स की एफिशिएंसी के मैक्सिमम उस पर थ्रेशोल्ड पे आ चुके हैं, और हमें डाटा स्ट्रक्चर्स बनाने भी आ गए हैं, हमें डाटा स्ट्रक्चर्स की वेरिएशन भी करनी आ गई हैं कि कहाँ पे क्या वेरी किया जा सकता है। तो वी आर अप टू अ स्टेज कि हम किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, आफ्टर दिस ट्रीज वी वुड डिस्कस एक्चुअली, इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रीज जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन after those discussions we would move on to the graph data structure जो कि बहुत ही ज़्यादा flexible होगा। and that is the last data structure। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करना होगा, दैट इज हैशिंग। होपफुली हम वो साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। तो अगर वो डिस्कस हो जाता है तो दैट्स द कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर्स कोर्स। ठीक है, तो हम बड़े सीक्वेंशियल वे में अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए। ओके, तो लेट्स डिस्कस दिस बाइनरी ट्री फर्दर। So first two are the binary trees, and this third one is not the binary tree, binary search tree. And
Now coming on the implementation, के implementation में I have these functions: create a tree जो कि constructor है definitely, then I have finding, inserting, deleting. These are three functions that are actually very important here. I said in the previous lecture कि for binary tree we won't discuss any find, insert or delete operation. We only discuss the reversing operations. And I said we would discuss the insertion, deletion, and finding for the particular tree that we would be implementing. So here now we have a specific type of a tree that is a binary search tree. It has its own mechanism of finding, inserting, and deleting. So we have these three algorithms here. For traversal, I have the same code that I used before in the binary tree. So there is no change in this code. ठीक है जी? तो लेट्स सी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी. सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये इसका नोड कैसे बनेगा. ये जो डाटा स्टोर कर रहा है बीएसटी, हाउ वुड इट स्टोर द डाटा इन इट्स नोड्स. तो अ नोड इज अ वेरी प्योर बाइनरी नोड. It has a value and two children left and right. Here the value is integer just for the sake of simplicity. Otherwise this should be a templatized data type. ठीक है जी. तो अच्छा, हनान पे वही एक्चुअली मैंने इसी का आंसर किया कि जनरल ट्री में इंसर्ट डिलीट की जरूरत ही नहीं डिस्कस करने की, बिकॉज वी नेवर हैव जनरल ट्रीज. वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ ट्री जिसमें एग्जैक्टली हमें इंसर्ट, फाइंड और डिलीट पता होगा कि कहाँ पे जाना है. ठीक है जी. तो जैसे कि अभी असाइनमेंट में को बताया हुआ है कि आपने किस तरह से चिल्ड्रन बनाने हैं, तो फिर उसका इंसर्ट इस बीएसटी के इंसर्ट से बहुत डिफरेंट होगा. ठीक है जी. तो दिस इज द नोड जिसमें लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन, दो पॉइंटर और वैल्यू मेरे पास मौजूद है. इस नोड को मैं अब बाइनरी सर्च ट्री में यूज करूंगा. और आई हैव दिस स्केलेटन ऑफ द ट्री. ये हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द ट्री, एग्जैक्ट सी प्लस प्लस कोड है जो कि चलता है. सो इफ यू सी हियर कि आई हैव अ बिगर पोर्शन ऑफ प्राइवेट डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. ठीक है. एंड अ फ्यू पब्लिक फंक्शन जो कि मैंने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किए थे. वी हैव दीज थ्री ट्रेवर्सल फंक्शंस जो कि एग्जैक्टली वही हैं जो कि हमने बाइनरी ट्री में डिस्कस किए थे. इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. और वही उनके अंदर पब्लिक फंक्शन जो कि रूट से स्टार्ट करते हैं. और ये रिकर्सिव फंक्शन है. इनकी इम्प्लीमेंटेशन वही है जो पिछली स्लाइड्स पे हम पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं. जो नई चीजें, दिस आर दिस इंसर्ट फंक्शन विच एक्सेप्ट्स अ वैल्यू और उस वैल्यू पे इंसर्ट करता है, उस वैल्यू को इंसर्ट करता है. देन आई हैव अ फाइंड फंक्शन जो फाइंड करता है इस इंटीजर वैल्यू को जो यूजर ने पास किया. तो रिमेंबर यहाँ पे कोई ये पास नहीं हो रहा कि कैसे फाइंड करना है, कि starting from the root node or not or क्या. So this is a public function. It just asks for the input from the user. और यूजर को सिर्फ डाटा का या इंडाइसिस का पता होता है. यूजर को ये पता नहीं होता कि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे, अंदर ये पॉइंटर बना हुआ है या नहीं बना हुआ. तो यूजर ने सिर्फ वैल्यूज पास करनी थी. एंड फॉर दिस रिमूव फंक्शन व्हाट आई हैव हियर इज दैट आई हैव दिस रिकर्सिव प्राइवेट फंक्शन. ठीक है. तो दिस इज द पब्लिक फंक्शन जो कि सिर्फ वैल्यू रिसीव करे जिसको डिलीट होना है. देन आई हैव दिस delete node function that is private here, this delete node function. And this private function, it receives the value and it says कि start from the root node and then find this value and delete it. तो this delete node function जो है it would eventually find the value जो delete होनी है and then call this make deletion function on that specific node. You delete this node from that tree. So this make deletion function is actually the function, utility function that this delete node calls. Okay, and a heads up here is that we have this data type here. What's this data type? Can anybody explain? चलिए अभी आप अपना ना ज्यादा जोर डालें. This is a point. This is a reference to a pointer. Yes, तो remember जब हम pointer of tree node. जी जी, दिस इज अ रेफरेंस ऑफ अ पॉइंटर. ठीक है जी. तो इफ इट्स अ रेफरेंस ऑफ अ पॉइंटर तो इट मींस कि जब भी हम कोई रिकर्सिव डेफिनेशन करते हैं तो प्रोबेबली इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंटली सोचनी होती है. देखिए आप रूट नोड से चले नीचे वाले लेवल पे आ गए तो ऊपर वाले लेवल का कोई ना कोई कनेक्शन तो नीचे वाली कॉल से होना चाहिए ना. तो वो जो कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे रेफरेंस से मेंटेन किया है. आई विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. प्रोबेबली आज के लेक्चर में हम सिर्फ फाइंड और इंसर्ट का कोड करेंगे. अच्छा, उसके बाद दिस प्राइवेट फंक्शन डिस्ट्रॉय सब ट्री. ये अलग से प्राइवेट फंक्शन इसलिए कि दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन.
इसको कॉल करता है डिस्ट्रक्टर, जो कि ऑफ कोर्स मेन से भी कॉल हो सकता है डिलीट कॉल करके, या अगर वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप जाता है बीएसटी का, तो ये डिस्ट्रक्टर खुद कॉल हो जाएगा। जब डिस्ट्रक्टर खुद कॉल होगा तो इसमें तो कोई पैरामीटर नहीं होता, लेकिन ये इंटरनली अपने पास एक यूटिलिटी फंक्शन जो कि रिकर्सिव है उसको बना लेता है, जो कि रूट से स्टार्ट करके नीचे तक सब नोड्स को बारी बारी डिलीट करता जाता है। सही है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये डिस्ट्रॉय सबट्री पहले अपने लेफ्ट चाइल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर राइट चाइल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर अपनी वैल्यू को मेक डिलीशन कॉल करेगा, है ना। चलिए, लेकिन हम देखते हैं आगे स्लाइड्स में। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट फंक्शन। अगर आप देखें तो जब मुझे रिमूव करना है या वैल्यू को इंसर्ट करना है, मुझे दोनों केसेस में ये वैल्यू जो यूजर ने पास की इंटीजर वैल्यू, ये सर्च करके इनको डिलीट या इंसर्ट करना है। ठीक है। तो द बेसिक ऑपरेशन इज फाइंड। तो लेट्स डिस्कस दिस फाइंड ऑपरेशन बिफोर इंसर्ट और डिलीट। तो हाउ डू वी फाइंड इन अ बीएसटी, वो तो हमने डिस्कस पहले भी कर लिया था, लेकिन लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। इफ यू हैव दिस वैल्यू 2 टू फाइंड, if you want to find 2, I would I can actually define it recursively. In the slides I have an iterative code, लेकिन I can define it recursively, and the recursive definition could be कि I ask this root node whether you contain the value 2 or not. This node would say, no, I do not contain 2, I contain something else. Then I would say, if this value that I am searching is bigger or smaller than you, this 10 would reply that this 2 is smaller than my value. So I say, okay, I'll search in the left subtree. In the left subtree, I will do the same process. I would ask this 5, if the value 2 is equal to your value, it would say no. I would say if it's smaller than its value, it would say yes. I would move to this subtree and find the value 2 here. So the same process is followed on all the nodes on this branch. सही हो गया। अगर मैंने 20 सर्च करना था, I would ask this 10 and move to this right subtree. I would ask this 30 and move to this left subtree. I would ask this 25. It says that the value that I contain is bigger than the value that you are searching, if you are searching 20. So I would move to the left subtree and that's null. ठीक है जी। तो if that's null, it means कि I have not found the value. तो फाइंड के फंक्शन के दो ये आंसर्स हो सकते हैं, रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स। तो फॉल्स मैं तब रिटर्न करूंगा कि मैं उस रिस्पेक्टिव ब्रांच पे चला गया हूँ और मैं चलते चलते उस नोड पे चला गया हूँ जो कि जिसके किसी एक साइड पे इसको होना चाहिए था, लेकिन जिस साइड पे होना चाहिए था वो साइड नल है। इट मीन्स कि वो वैल्यू इस ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर ही गया हूँ, बाकी सारे नोड्स को मैं स्किप करता गया। तो मैंने ये अगर 20 सर्च कर रहा था, इस 5 और 2 इनको भी स्किप किया, इस 45 को भी स्किप किया। आई जस्ट मूव ऑन टू द ऑन द ब्रांच जिसमें 30 और 25 आ रहा था। तो पॉसिबली 20 को इस ब्रांच पे मिल जाना चाहिए था, लेकिन अगर ब्रांच खुद खत्म हो गई है तो 20 इज नॉट इन द ट्री। दैट्स द आउटपुट के आई हैव नॉट फाउंड द वैल्यू। ओके, नाउ finding 25 in the tree is के 5 से बड़ी वैल्यू, 45 से छोटी, 30 से छोटी, 10 से बड़ी, तो दिस इज 25। ठीक है जी। तो मैं हर नोड को जो रास्ते में आ रहा है से पूछता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करना चाहूँ तो यही जो मैंने डेफिनेशन रिकर्सिव की है, ऑफ कोर्स रिकर्सिव डेफिनेशंस को इटरेटिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो वही इंप्लीमेंटेशन आपको अगली स्लाइड पे मैं दिखा देता हूँ। दैट्स वेरी सिंपल। इफ आई वांट टू फाइंड दिस नंबर, I start from the root node. तो मैंने root का एड्रेस node ptr में स्टोर किया। I have this address of root in this node ptr. Then I check if it's null, तो I simply return false. If it's not null, तो let's take the example कि I'm finding 25. If I'm trying to find 25 here, the number is 25. Node contains the address of root pointer, so I'm here. ठीक है जी। Now it's not null. I move in the loop, I go inside the loop and I check if the value at the root node is equal to 25. No, it's not equal. It means I am not going to return. I need to search further. I'll ask the root node if the value is smaller than it itself or not. तो smaller भी नहीं है, value is bigger. तो इस if में भी नहीं गया, मैं इधर else में आ गया। It means कि value is not equal and not less. The last option is कि the value is bigger than the value in the root node. So what I would do is I would
move my search towards the right of the root. So node ptr right, 10 ka right is 30. So I would store the address of this 30 in node ptr and start the loop again. So move to the next iteration of the loop. So 30 is not null. I will compare the value 25 with the 30. It's not equal. 25 is less than 30. So now this if is true. I would move to the left. So 30 ka left is 25. So I store the address of 25 in node ptr and go to the next iteration of while loop. Then I have this 25, it's not null, and the value is equal to 25. I will return true here. Okay, so this is the find function of binary search tree. ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है जी, तो now I'll use this mechanism जो find में मैंने यूज किया है. I will use this mechanism in insert and in delete as well. delete में रिकर्सिवली करेंगे, लेकिन इंसर्ट में हम इसी वाइल लूप के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि इंसर्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इटरेटिवली स्लाइड्स में. अदरवाइज यू कुड हैव एन रिकर्सिव डेफिनेशन एज वेल. ठीक है, वो इनफैक्ट ज्यादा आसान होती कोड करना. ये थोड़ी सी इफ एल्स लगे में, you could have made just a single call here. ठीक है, if this then make a single call. तो वो छोटा कोड शेयर हो जाता. वह लूप ना लगी होती, एक बेस केस होता और एक अदरवाइज केस होता. चलिए लेट्स सी. मूविंग ऑन टू द इंसर्ट नोड. इफ आई वांट टू इंसर्ट 20 हियर, so the logic is कि in a BST I would always like to make sure that the already created tree is not disturbed. ठीक है जी. Okay, there's a question. अच्छा, दानियाल says कि we should have returned a pointer of the tree node. दानियाल रिमेम्बर, वो जो पॉइंटर रिटर्न किया है फाइंड का जो फंक्शन था, इसकी लॉजिक ये थी कि वैल्यू है या नहीं है. कहाँ पे, ऐसे तो गर्ज ही नहीं है ना. I have a tree which contains my data. I want to search a value कि is this value inside the tree or not. ठीक है, I do not want to check the structure of the tree कि किस जगह पे जाके ये नोड पड़ा हुआ है, इस पे इसके पेरेंट्स कौन है, इसके चिल्ड्रन कौन है. ठीक है जी, I just want to search that specific value. ठीक है, तो the result should be true or not, false. ठीक है, that should be the result. तो नोड को रिटर्न करना, तो फिर वही वायलेशन है ऑफ OOP प्रिंसिपल्स के. आप इस ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंटरनली बता रहे हैं कि इट्स इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर्स एंड नॉट एरेज, जिसका यूजर को कोई कंसर्न नहीं है. आप अंदर यू आर द प्रोग्रामर ऑफ द लाइब्रेरी एंड यू मेक श्योर दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट एफिशिएंट. whether it's array based or pointer based is not of any concern to the user. ठीक है जी. तो ये यहाँ पे आपने एक डिस्टिंक्शन इन में रखनी है कि यू ऑलवेज मेक श्योर कि इंटरनल्स आपने किसी भी सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन में नहीं दिखाने किसी को. ठीक है जी. चलिए, मूविंग ऑन टू द इंसर्ट फंक्शन. तो इंसर्ट की जो पहला चीज आपने ज़हन रखनी है कि वी वुड नॉट डिस्टर्ब दिस ट्री स्ट्रक्चर. अगर ये ट्री बना हुआ है तो दिस इज बिल्ट बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज जो इसमें इंसर्ट हुई है कि किस सीक्वेंस में आई थी. सबसे पहले 10 आया था इसलिए रूट पे पड़ा हुआ है. अगर ये किसी बात के नंबर पे आता तो ये रूट पे ना होता. तो 10 रूट पे है. 10 के बाद डेफिनेटली 2 और 5 में से 5 पहले आया था इसलिए वो रूट 10 का ही चाइल्ड बन गया, और इसके बाद 2 आया तो वो 5 का चाइल्ड बना. ठीक है, अगर 2 पहले आया होता तो वो डायरेक्टली 10 का चाइल्ड बन जाता. सही है. तो जो बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री में इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब भी हम वैल्यू इंसर्ट करें तो हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप बने हुए हैं नोड्स के आपस में, उन्हें नहीं डिस्टर्ब करना. इनफैक्ट ये जो 20 होगा, ये 20 एग्जैक्टली फाइंड का प्रोसेस पे चलेगा कि 20 अगर इस ट्री में मिलता तो कहाँ मिलता. तो आप ये भी सोच सकते हैं कि पहले मैं ये चीज रूल आउट करूंगा कि डुप्लीकेट तो नहीं है. तो आई वुड फाइंड दिस 20. जब मैं फाइंड करूंगा तो आई वुड मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ 10 and then left of 30, and this is 25. I would move further left of 25. तो
अगर मुझे उस ब्रांच पे मैं मूव करते करते पहुंच गया एक ऐसे नोड पे जिसके किसी एक साइड पे इसको होना चाहिए था, वहां पे ये नोड नहीं एग्जिस्ट करता, वहां पे नल है, इट मीन्स कि मुझे 20 खुद नहीं मिला, इनकी डुप्लीकेशन वाली चीज रूल आउट होगी, लेकिन मुझे वो नोड भी मिल गया जिसने इसका पेरेंट बनना है। तो डेफिनेटली 20 वुड बी द चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 25। ठीक है जी। तो बीएसटी में इंसर्ट करते हुए मैं हमेशा फाइंड के प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस नए नोड का पेरेंट फाइंड कर लूंगा और फिर उस पेरेंट के नीचे इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है जी। तो दैट्स द वे हाउ आई अटैच न्यू नोड इनटू द बाइनरी सर्च ट्री, एन एग्जिस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। और अगर ट्री पहले ही एम्प्टी है तो आई वुड सिंपली ऐड दैट नोड टू द रूट, यानी कि वो रूट बन जाएगा। ठीक है। तो दीज आर टू केसेस जो कि हमेशा से हमारे हर डाटा स्ट्रक्चर में होते हैं कि if the data structure is empty, just make the new node as the starting node और first node और head node और ठीक है जो भी टॉप या बॉटम जो भी चीज बनती है वो आप बना लेते हैं। ठीक है। तो हमने वो केस तो देखना ही था। तो लेट्स सी कि ये इंसर्ट हम से करते हैं। तो इंसर्ट नोड के फंक्शन में आई हैव दिस इनपुट नंबर, देन व्हाट आई डू इज, अच्छा एक रिमेंबर ये एक और इनसाइट इसमें थी जो कि मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ। वो इनसाइट ये थी कि जब हमने नया नोड ऐड किया है तो रिमेंबर कि जो भी नया नोड ऐड होगा वो उस ब्रांच के आखिर में ऐड होगा। तो इट मींस कि जो नया नोड होगा इट वुड ऑलवेज बी अ लीफ नोड। ठीक है जी। तो जो नया नोड होगा इट वुड ऑलवेज बी अ लीफ नोड, ये कभी भी इंटरनल नोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनली जो भी नोड्स बने थे उनको तो हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया ना, वी जस्ट स्लाइडेड दिस या स्लिड दिस नोड ऑन द ब्रांच जिस पे इसको होना चाहिए था और ये जाके उसके सबसे नीचे जाके अटैच हो गया। तो दैट्स द वे कि बीएसटी वर्क करता है इसका। ठीक है जी। तो नया नोड जो भी आएगा दैट वुड बी अ लीफ नोड। तो जो नया नोड मैं नई वैल्यू एक नोड में इंसर्ट करनी है तो मैंने न्यू नोड पॉइंटर बनाया, उसको न्यू किया, वैल्यू स्टोर की, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड चिल्ड्रन आई मेड द नल, both the children are null because this is a leaf node, new node would always be a leaf node। सही हो गया। नाउ आई वुड स्लाइड दिस नोड ऑन टू द बीएसटी और बीएसटी खुद इसको मूव करता जाएगा कि आपने ऐसे जिग जैग करते करते यू वुड मूव ऑन टू अ ब्रांच एंड रीच टिल द एंड ऑफ दिस ब्रांच एंड बी एडेड एज अ लीफ नोड। तो दिस इज हाउ द बीएसटी इंसर्ट वर्क। सो लेट्स सी कि अभी इसमें फाइंड में चेंज क्या है। तो I what I did is कि first I check कि if this root node is null, if it's null तो उसका not is true और मैं यहाँ पे आके new node is equal to root यानी कि root is equal to new node कर दूंगा। तो tree का root पहले null था, it becomes the new node और हमारा यहीं पे ये terminate कर देगा function। Otherwise I would use the mechanism of find। तो फाइंड का मैकेनिज्म क्या था जी कि स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड आई मेक जो ये जो मैंने टेम्पररी पॉइंटर नोड पीटीआर बनाया था, आई स्टोर द एड्रेस ऑफ रूट इन दिस नोड पीटीआर और फिर वही वाई वाला लो कि इफ इट्स नॉट नल तो फिर इसके अंदर चले जाएं और ये इफ एल्स वही वाले लगे हुए। हमने चेक किया कि इफ द वैल्यू, अब यहाँ पे आपने फॉलो करना है कि जो नंबर है दैट इज फॉर एग्जांपल 20 जो कि इस ट्री में, और रूट पे हमारे पास 10 था तो रूट इज नॉट नल। हमने चेक किया वैल्यू को, मैं इनफेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू जो मैं जिनके ऊपर मैं ट्राई रन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो जो नई जो मैं वैल्यू इंसर्ट कर लूंगा द वैल्यू इज 20। ठीक है जी। आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट 20 इन दिस ट्री और ट्री जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो यही वाला जो पहले मैंने क्लीना था ये वाला। ठीक है जी। तो 20 रूट पे, उसके राइट पे 30 पे 25। तो अब देखेंगे इस पाथ पे कैसे जाना है। रिमेंबर 10 के राइट पे 30 और लेफ्ट पे 25 है। इनफैक्ट मैं यही ट्री इतना सा यहाँ पे बना भी देता हूँ आगे। रूट पे 10, 10 के राइट पे 30 और 30 के लेफ्ट पे 25। तो ये वाला पाथ है जिस पे इसने जाना है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 25 था। ठीक है जी। रिमेंबर दिस। और ये 20 इंसर्ट होने लगे तो हमने इसी ब्रांच पे जाना था। अच्छा तो हमने किया क्या उसके बाद कि वी चेक द रूट नोड जो कि नल नहीं है। अगर नल नहीं है दिस इज 10 तो वी चेक कि नई वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है। तो नई वैल्यू द नंबर इज 25, 25 इज ग्रेटर देन नोड पीटीआर वैल्यू। तो इस इफ मैंने ये भी मूव टू दिस एल्स नंबर इज ग्रेटर देन 10 ट्रू हो गया।
अब जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो वी चेक्ड कि अगर 10 के राइट पे कोई नोड एग्जिस्ट करता है तो मैं सर्च करूं फर्दर, अदरवाइज आई जस्ट ऐड द न्यू नोड ऑन द राइट ऑफ 10। ठीक है, दिस इज द लॉजिक हियर कि मेरी जो सर्च है वहां पे ब्रेक कर जाती है जब मैं उस ब्रांच के एंड पे पहुंच जाता हूं। तो मैंने चेक किया कि अगर तो इसके राइट पे कोई नोड है तो मैं सर्च करूंगा, लेकिन अगर राइट पे नोड नहीं है तो मैं सर्च नहीं करूंगा। ठीक है जी। तो ये इफ चेक कर रहा है कि जो 10 है, 10 का राइट इफ इट एग्जिस्ट, डेफिनेटली इट एग्जिस्ट, यहाँ पे 30 है, तो व्हाट आई वुड डू इज कि आई वुड स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट राइट पॉइंट नोड इन द नोड पीटीआर। तो मैंने नोड पीटीआर में स्टोर किया 30 का एड्रेस, एंड आई वेंट बैक टू दी वाइल लूप, दोबारा चेक किया 30 इज नॉट नल, वैल्यू मैच की, नंबर इज 25 विच इज लेस देन 30, तो मैं इस इफ में आ गया। अब मैंने चेक किया कि 30 के लेफ्ट पे कोई नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि मैं 30 के लेफ्ट पे इंसर्ट कर रहा हूँ, 30 से छोटी वैल्यू है, तो 30 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो मैंने नोड पीटीआर में एड्रेस स्टोर कर दिया इसके लेफ्ट का, तो ये 25 का एड्रेस नोड पीटीआर में आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ वाइल, यहाँ पे अगेन आई चेक कि 25 इज नॉट नल, आई चेक द वैल्यू इज लेस देन 25। ठीक है, वैल्यू इज लेस देन 25, तो व्हाट आई डिड के आई चेक के 25 के लेफ्ट पे कोई नोड है, देयर इज नो नोड ऑन द लेफ्ट, तो 25 का लेफ्ट इज नल, तो दिस इफ इज नॉट ट्रू, नाउ दिस एल्स पार्ट हियर इज द इंसर्शन पार्ट। तो हमने क्या किया कि वी सेट किए नोड पीटीआर यानी कि 25 का लेफ्ट पे न्यू नोड असाइन किया, एंड आई ब्रोक द लूप। ठीक हो गया, दिस इज द लॉजिक। और अगर आप देखें तो ये तो लेफ्ट पे इंसर्ट करने की लॉजिक थी और ये राइट पे इंसर्ट करने की लॉजिक थी। अगर फॉर एग्जांपल हम 26 सर्च कर रहे होते तो उस केस में हम इस इफ में ना जाते, 26 इज बिगर देन 25, तो मैं यहाँ एल्स में आता और मैं चेक करता कि वैल्यू बड़ी है, ट्रू हो गया, और मैं यहाँ पे करता जी कि अच्छा उसके राइट पे 25 के राइट पे कोई नोड नहीं है, तो आई वुड मूव टू एल्स और यहाँ पे राइट पे न्यू नोड अटैच करके ब्रेक कर देता। सो दैट्स द लॉजिक ऑफ इंसर्ट इनटू अ बीएसटी। और अगर मैं फॉर एग्जांपल 25 ही इंसर्ट कर रहा होता तो मैं नोड पीटीआर जब मैं 25 पे पहुंच जाता ब्रांच पे चलता चलता यहाँ पे, तो मैं चेक करता वैल्यू छोटी नहीं है, वैल्यू बड़ी नहीं है, देन अदरवाइज द वैल्यू इज इक्वल, तो मैं यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट किए बगैर ब्रेक कर रहा हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड का मैसेज एंड ब्रेक द लूप। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई इंसर्ट a node in a BST, and we'll stop here, and in the next lecture we'll discuss how we delete values from a BST. If you have any questions you may ask.